तो शेड्यूल 2 का एमसीक्यू करते हैं आपके साथ, और एमसीक्यू का पर्पस रिवीजन करना है। तो आइए, द शेड्यूल 1, question 1. The purpose of Schedule 2 under CGST Act 2017 is to determine whether transaction is supply or not, to classify a transaction into either supply of goods or supply of service, either A, B, none of the above. B आएगा. In Schedule 2, single supply can be classified into supply of goods, supply of service, either A, B, none of the above. Either A or B. So goods, single supply of goods can be treated as supply of goods, or it can be treated as supply of services also. Supply of services can also be treated as supply of services or goods, possible है, और bundled है तब तो possible ही है. In Schedule 2, more than one supply can be classified into, ये हमने इसको ठीक करना होगा. In Schedule 2, more than one supply, instead हमें लिखना होगा more than one supply, या bundled लिखना होगा, bundled supply of goods or services. इस तरह से can be classified into supply of goods, supply of service, either A, B, none of the above. तो C आंसर है. Financial lease transactions shall be treated as supply of goods. True or false? True. Why true? Why true? क्योंकि in future there is an agreement that the lessee will acquire the goods. इसीलिए है. Operating lease transaction shall be treated as supply of services. True or false? True. तो both true. Transfer of title in goods, whether in present or in future, is supply of goods. True. Where there is no transfer of title in goods, it is supply of services. True. इसको थोड़ा सा और ठीक भी करना पड़ेगा. Where there is no transfer of title in goods सिर्फ लिखने से नहीं होगा. There is a transfer of goods without the transfer of title to the goods. इस तरह से लिखना होगा. तो इसको हम लोग ठीक करेंगे. True. As per the Constitution of India, sale of land can be subjected to GST. True or false? True है राजेश जी. True है. Constitution अलाउ करता है. Schedule 3, as per Schedule 3, sale of land is not treated as supply. True. Both true. As per, और इसीलिए जब मैं बिल्डिंग बेच रहा हूं तो लैंड प्लस बिल्डिंग प्लस लैंड प्लस मटेरियल प्लस लेबर बेच रहा हूं, तो लैंड का वैल्यू, लैंड का 1/3 माइनस कर देते थे हम लोग, क्योंकि सेल ऑफ लैंड इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई. Examine the following. As per Constitution of India, sale of building can be subjected to GST. True or false? यहाँ लिख देंगे after completion. True. As per Schedule 3, sale of building subject to this entry is treated as supply. False. सप्लाई नहीं मानेंगे ना, सब्जेक्ट टू है, तो सेल ऑफ बिल्डिंग इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई. ट्रू और फॉल्स? और आप ये समझिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, देखिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, वैसे मैं आगे मैंने एमसीक्यू बनाया हुआ है. कॉन्स्टिट्यूशन लैंड और बिल्डिंग के सेल को अलाउ करता है, लेकिन जीएसटी एक्ट शेड्यूल 3 में इसको नो सप्लाई मानता है. फ्यूचर में बताइए क्या होगा?
आज से 5 साल बाद क्या गवर्नमेंट चाहे सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग पे आज जो स्टाम्प ड्यूटी लग रहा है उस पर वो चाहती है कि जीएसटी लग जाए, तो पॉसिबल है या नहीं है? सिर्फ शेड्यूल 3 के इस एंट्री को डिलीट ही तो करना होगा। जैसे ये शेड्यूल 3 की ये एंट्री डिलीट हो जाएगी तो हमने ये जितना इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ 42, 43 आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा वो सब खत्म हो जाएगा। और ये स्टेट गवर्नमेंट मान नहीं रही है। स्टेट गवर्नमेंट मान जाए तो काम हो जाएगा। चलिए, मैच द फॉलोइंग। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बताइए। जीएसटी लेवाइड अंडर सेक्शन 9, नो जीएसटी किस में आएगा? ABCD 1 का। डी, कॉन्स्टिट्यूशन ही अलाउ नहीं करता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी का डेफिनेशन है, इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन लिखा हुआ है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 9 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है, सी। सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग आफ्टर इट्स कंप्लीशन, शेड्यूल 3 बी। 4th, लीजिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ए। लगता है DCBA ये आंसर है। अब आगे, X Limited sent their glass to Y Limited for heat treatment to manufacture tempered glass. The heat treatment done by Y Limited is a supply of service. True or false? True. X Limited buy a glass from Y Limited and also asks for heat treatment to make the glass unbreakable. This transaction is supply of services. True or false? फॉल्स है। फॉल्स है। मैं दुकान गया, बोला ग्लास दे दो, बोला सर ग्लास तो मैं खरीदने से पहले बोला इसको टेम्पर्ड भी कर दो, अनब्रेकेबल बना दो, हीट ट्रीटमेंट देके। तो इट इज ए कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स, जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई ग्लास था। और लेकिन ग्लास मैंने दिया है तब तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। तो ट्रू फॉल्स। X Limited donated motor car to a charitable trust is not a supply, therefore no need of classification of supply as goods or services. True or false? ट्रू है। अब एक बार फिर से पढ़िए सेंटेंस। X Limited डोनेटेड है मोटर कार पे आईटीसी नहीं मिलता है, नो आईटीसी। किसको डोनेट किया? चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट किया, तो नो कंसिडरेशन। तो सप्लाई नहीं है। इस पे आईटीसी मिल जाता तो शेड्यूल 1 एप्लीकेबल हो जाता है, तो सप्लाई हो जाता है। इसीलिए हमने चुना मोटर कार एसेट को। X Limited donated motor car to a related party is a supply and it is supply of goods. True or false? अरे ये तो ट्रू कर दीजिए। शेड्यूल 1 में कई एंट्री है, 1 2 एंट्री 1 2, तो इसमें रिलेटेड पार्टी में तो आएगा ही आएगा, तो वो ट्रू। कितनी भी कोशिश कर लो रिपीट हो ही जाता है। K Enterprise is a supplier of tents for its business. The company lends a few tents to its manager for his son's wedding without consideration. बताइए सप्लाई है या नहीं है? यस, क्योंकि
एम्प्लॉय रिलेटेड पार्टी है. Normal value of supply is 1 lakh. The private users of the tents by the manager is a supply of service. True? एक मिनट. Bina Limited bought a bulldozer to be used in its own construction business. However, it made the bulldozer available to be used in the construction business of its sister company. बताइए सप्लाई हो गया या नहीं हो गया? Yes. अगर सप्लाई है तो इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस. दिस इज ऑल्सो ट्रू. X Limited makes sale of all of the assets of the business is a supply of goods. True. X Limited making sale of all the assets of the business along with liabilities is a supply of service. Going concern. True. तो पार्ट ऑफ द एसेट बेचेंगे तो सप्लाई ऑफ गुड्स है. होल ऑफ द एसेट्स अलोंग विथ लाइबिलिटीज बेचेंगे तो ट्रांसफर एज ए गोइंग कंसर्न हो जाएगा और सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा. बोथ ट्रू. कैसे रिपीट हो जाता है? सेल ऑफ फ्लैट बाय बिल्डर कंप्राइजेज ऑफ सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ मटेरियल एंड लेबर, बोथ ए एंड बी, ओनली बी. Both A and B. Land, material plus labor. Sale of under constructed flat is a supply of service. Sale of flat after its first occupation is supply of goods. ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस. ये फॉल्स है. सॉरी है तो फॉल्स ही, लेकिन इट इज नो सप्लाई. सेल ऑफ फ्लैट आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन तो शेड्यूल 3 में आ गया और नो सप्लाई. तो ट्रू फॉल्स. नहीं, गुड्स ही नहीं है, मैं वही कह रहा हूं नो सप्लाई है. तो सेल ऑफ फ्लैट आफ्टर इज फर्स्ट ऑक्यूपेशन इज सप्लाई ऑफ गुड्स. इनफैक्ट इट इज अ नो सप्लाई, तो क्लासिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है ना. आफ्टर इज फर्स्ट ऑक्यूपेशन तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं और सेंटेंसेस लिख देंगे. एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. टेम्पोररी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस. परमानेंट ट्रांसफर ऑफ आईपीआर इज सप्लाई ऑफ गुड्स. बोथ ट्रू. Temporary transfer of information technology software is supply of services. Permanent transfer of information technology software is supply of goods. Both true. Penal interest on late payment of EMI is a taxable supply. False. Exempt है. Hotel levies cancellation charges for cancellation of hotel room. In this case, hotel owner agrees to tolerate an act is a supply of service. False true. Fitting of LPG pipes is a worse contract and hence supply of service. Why? Since material plus labor कंपनी का है and it will give rise to immovable property. Therefore, painting of building by person A
with the material supplied by the recipient is a worse contract? False. मटेरियल भी सप्लायर का होना चाहिए, लेबर भी सप्लायर का, और उसके बाद इट शुड गिव राइज टू, उस मटेरियल प्लस लेबर से जो चीज बनेगी या होगा, इट शुड गिव राइज टू इमोरल प्रॉपर्टी. ट्रू एंड फॉल्स. Supply of goods by a club to its own members is not a supply since club and its member are not a distinct person. अब देखिए, यह हमने बना तो दिया है और ये सही भी है, लेकिन सर्कुलर मानता नहीं है, डिस्प्यूटेड है. करेक्ट. तो डिस्टिंक्ट पर्सन हो या ना हो, सर्कुलर ने तो कह दिया इट इज अ सप्लाई. इसका बहुत अजीब सा लग रहा है. ट्रू लिखूं या फॉल्स लिखूं? दिल की बात मानूं? सर्कुलर के अकॉर्डिंग कर देते हैं. ट्रू. चलिए सर्कुलर के अकॉर्डिंग, और यहां लिख देते हैं एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर सर्कुलर, और वो सर्कुलर नंबर लिख दूंगा मैं यहां पर. ठीक है. ट्रू. सप्लाई ऑफ गुड्स बाय क्लब टू इट्स ओन मेंबर्स इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स वेदर क्लब एंड इट्स मेंबर्स आर डिस्टिंक्ट पर्सन और नॉट. ये भी ट्रू. बोथ ट्रू. और एक बना देंगे, टेनेंसी प्रीमियम in respect of building is not a supply. True or false? False. दूसरा, capital contribution by a member in a joint venture is taxable supply. True or false? False. तो कंप्लीट हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया. तो मुबारक हो, कल मिलते हैं आप. अब आने वाला जीएसटी जो है आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है. इसमें वैल्यूएशन है, जॉब वर्क है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन है, रिफंड है. रिफंड में थोड़ा सा है कलाकारी, लेकिन ठीक है. फिर भी असेसमेंट है, डिमांड रिकवरी, अपील्स, बहुत ही आसान है. जितना हमने किया उससे तो आसान ही है, तो उसको भी करते हैं. चलिए फिर कल मिलते हैं. बाय बाय.